کل ہم نے کیا جانا ہے، کیا منہ دکھانا ہے وہاں جا کے، کیا کہنا ہے، کیا کر کے بچے جم کے آئے. تو بچہ تو حضرت جی پھر اگر بچے ہی جمنا بہادری ہے تو بچے تو حضرت پھر وہ کتے کے گھر بھی ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. بچے تو پھر بکری کے گھر بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی بہادری نہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. زندگی تو بندگی کے لیے ہے، اگر بندگی نہیں ہے تو یہ شرمندگی شرمندگی ہے. اس لیے پتر بندگی کرو، بندگی. یہ اور قربان جاؤں ہمارے بزرگ کمال کر دی نا، پھر بتا دیا کہ بندگی کہتے کس کو ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی. فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، تو فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. اس وقت کے بزرگ بھی بڑے کمال تھے، حسد کا تو ان میں شائبہ بھی نہیں تھا نا. بڑا اچھا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا کرتے تھے. اب تو جس کو پوچھ لو کہتا میں ہی بزرگ ہوں، میں نے مل لو. تو بزرگ بھی بزرگوں کو ملنے جایا، کمال تھے حضرت. اور پھر آگے ایک بڑا کمال تھا ان میں، یہ رنگ تھا کہ ان کو جو ملنے آتا تھا نا، ان کو یہ بھی پتا ہوتا تھا یہ کیا سودا لینے آ رہے ہیں. وہ پھر پہلے وہ والی دکان سے جا کے رکھتے تھے حضرت، یہ کیا سودا لینے آ رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ حارث مجھ سے کیا سودا لینے آ رہے ہیں. انہوں نے پہلے وہ والی دکان سجا لی، تربیت کی. حضرت حارث محاسبی فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا جس میں آٹا گولا ہوا تھا، اور وہ فرماتے ہیں وہ بڑے مزے سے کھا رہے تھے. ہوتا ہے نا حضرت جی بعض دفعہ گھر میں کچھ اس طرح کا پک جاتا ہے، جس طرح آج کل اکثر ہمارے بچوں کو جو ہے نا کریلے نہیں پسند، ہمارے بچوں کو بھنڈیاں نہیں پسند ہیں. ان کا دل کرتا ہے سیرے بھی شورما ہوئے، دوپہر بھی شورما ہوئے، سوئیں تو پھر شورما ہوئے، اٹھے تو پھر شورما ہی ہوئے. تو لیکن کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ چیزیں نہیں پسند ہوتی تو کھاتے ہوئے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت کھا تو آٹا رہے تھے لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی ایسا رنگ نہیں تھا کہ جس سے لگے کہ حضرت آٹا کھاتے ہوئے خوش نہیں ہے. کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، بڑے مزے سے کھا لیتے. میں بڑا حیران ہوں بھائی اتنے حضرت کے مرید ہیں تو یہ کیا رنگ ہے کہ حضرت پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے ہیں. فرماتے میرے اپنے دل میں خیال آیا کہ شاید حضرت کے گھر میں برتن ہی نہیں ہے گوندنے کے لیے. کہتے دیکھا تو برتن تھے. کہتے پھر دل میں خیال آیا نہیں حضرت کے گھر میں شاید تندور نہیں ہے. حضرت کو تندور بھی کونے میں تھا. کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں آگ جلانے کے لیے. کہتے لکڑیاں بھی تھی. اور حیران ہوا. اب فرماتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا تو میں نے حضرت سے عرض کی میں حضور یہ آٹا کیوں کھان دے ہو، تھوڑی جی محنت کر دے تو گون لیندے، انہوں رکھ دے ذرا تیار ہوں جنہوں ساڑی پنجابی چ بڑھیاں کہتے ہیں آٹا وسمن لی رکھیا ہے، آٹا ذرا تیار ہو جاتا انہیں جو تندور چاک لا لیتے پیڑے بنا کے روٹی شوٹی لا کے کھاندے. آپ فرماتے وہ پھر آگے سے کیا جواب دیتے. آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگے حارث میں نے اس کو گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندنے بیٹھتا تو اس میں ٹائم لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اس میں بھی وقت لگ جانا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے وقت لگنا تھا. روٹی اس لیے نہیں لگائی وقت لگنا تھا. پھر اس روٹی کو کھاتے چباتے نگلتے وقت لگنا. وہ ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے. ذائقہ تو یہاں ہے، نیچے جا کے تو سارا کچھ برابر. مقصد تو پیٹ بھرنا ہے. تو میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے. تو آج حضرت جی ہمارا کیا کھانا بھی چنگا ہے، پانا بھی چنگا ہے، ذکر نہیں کرنا کوئی، یاد نہیں کرنا. اچھا چلو ایک اور سنو. میرے حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ ساری زندگی بابے نے محبت بانٹی ہے. جو آیا اس کو جس کا وہ طالب آیا اس کو دے کے بھیجا، خالی نہیں حکیم صاحب نے بھیجا. جڑا بیچارہ کسی جوگا نہیں انہوں نے حکیم صاحب نے کیلا دے کے بھیج چھڑیا ہے، انہوں بسکٹ دے کے بھیج. خالی نہیں ٹوریا بابے نے کبھی کسی آگے صحبت ادا کیا آپ نے. وہ جناب کی خدمت میں ایک بندہ آ گیا بڑا جناب امیر کبیر، اس کے لباس سے اس کی امیری جھلک رہی تھی. کپڑے بڑے اعلی، کوٹ بڑا زبردست، گھڑی کلائی پہ بڑی مہنگی، شوز بڑے قیمتی، وجود سے اٹھنے والی خوشبو بتا رہی تھی بڑی مہنگی میں بھی. ایک بار آیا، دوسری بار پھر آیا، تیسری بار پھر آیا. جب چوتھی بار آیا
शायद बार बार आने से उस पर रहम हो चुका था, उसकी हिदायत के आर्डर आ चुके थे, उसकी हिदायत के आर्डर आए। क्योंकि हज़रत जी वो मियाँ साहब फरमाते हैं ना, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे न काई है। शायद वो बार बार हाजिरी से ना को काम बदल गया था ऊपर से। वो जब चौथी बार आया ना, और आके जब वो जैसे हमारा तरीका के जाते हुए बुजुर्गों की दस्तबोसी करनी, उसने हजरत का हाथ पकड़ा, चूमा, आपने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका ये वाला दांत टूटा हुआ था, ये सामने वाला, तो आपने उसका हाथ पकड़ के ना बड़ी मोहब्बत से उसको कहते हैं, ओ संगिया तेरे कपड़े, तेरी जुत्ती, तेरी कड़ी, तेरे कपड़े, तेरा परफ्यूम दसदा पिया कि रब ने पैसे वाह ही दिते ने, ते दंद क्यों नहीं लवांदा है, वेख ना बोड़ा किड्डा कोझा कोझा लगन डे। हज़रत जी वो कहते हैं, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। लालच कोई नहीं सी, खैर खाई सी, दिलों निकली सीधी दिल चुतरी जाके। अगू जज्बे चर्ज करदा हकीम साहब, हूँ तुहानूं शक्ल भी उस दिन ही वहावांगा जिदन दंद लवा लवांगा। फरमाया जा फिर लवा के आ। बाहर ड्राइवर खड़ा था, लाहौर उसका बेटा नौकरी करता था, और ये बात है 1982-83 की। उसने जनाब ड्राइवर ने कहा टोर गड्डी लाहौर गया, 1.5 हफ्ता वहाँ रहा, दांत जनाब फिक्स करवा के ना घर भी नहीं गया, सीधा हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला के पास आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम पेश करके मुंह खोल के ना दिखा के अर्ज करता है, हकीम साहब एक दंद सोहना लगन डे है। आप बड़े खुश हुए, यार बंदे ने बड़ा पैरा दिता है गल। आपने फरमाया बाबा जी सोहना भी लगन डे, नाले तुसी भी सोहने सोहने लगन डे, तुसी भी जवान जवान लगन डे। अगर आप में से कभी को हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में बैठा हो तो उसको पता होगा कि आपका मिजाज ही नहीं था किसी की इतनी लंबी बात सुनने, किसी की जरूरत ही नहीं थी बात करने की, बस आपने थोड़ी सी मोहब्बत की तो वो शुरू हो गया। अर्ज करता है हकीम साहब तुहानूं की दसां, ਜਿਹੜੇ डॉक्टर ने दंद लाया वो किड्डा सोहना सी, ਉਹਦੀ टाई बड़ी सोहनी, ਉਹਦਾ ये बड़ा सोहना, ਉਹਦਾ वो 8-10 मिनट लगा रहा, वो सब से एंड पे क्या अर्ज करता है, और हकीम साहब एक दंद लाण दा उन्हें मेरे को 1000 रुपया लिया। या बच्चों को नहीं इस बात की समझ आएगी, ठीक है जी, लेकिन पुत्र याद रखना 1982 में 1000 होता किसी किसी के पास था, 1982 में 1000 होता किसी के पास था। उदों हज़रत जी चवानी दियां इन्नियां बड़ियां सिंगड़ियां आंदियां, बंदा झोली भर के ले आंदा हुंदा सी। हाँ बड़ा 1000 होता किसी किसी के पास, वड्डा अन्ना, ठीक है जी, दयानी का वो दौर था हज़रत जी, 1000 किसी ने 1000 देखा था तब। और कहता हकीम साहब एक दंद लाण दा उन्हें मेरे को 1000 रुपया। जब वो चुप हो गया ना, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर हकीम साहब बोले, आपने फरमाया ओए संगिया जेड़े डॉक्टर ने दंद भी एक ही लाया, वो भी 1000 लैके पूरे 10 मिनट तो दी तारीफ की है। और चलिया जिस रब ने कख नहीं लाया लिया तो 32 लाए ने कदी ओदी भी की है। देखो हाँ पुत्र इन्हें कख भी नहीं लिया तो 32 लाए ने तो सोहने लाए ने। डॉक्टर भावें जिन्ने मर्जी पैसे लाड़न ओदे जिहा नहीं ला सकते हैं। हाँ जी, मैं उस दिन एक बंदे मेरे दोस्त ने मैं दंद लवाया होना, बड़ा अच्छा खासा महंगा दंद लो, डॉक्टर परहेज दसन डे जी चींगम नहीं चबनी। मैं जी क्यों? उन्हें कहा नहीं जी दंद खराब हो जाएगा। मैं वाह मालका तेरे दंदां दे कुर्बान जी, चींगम छड़ के गन्ना खा छड़ो कख नहीं हुंदा है। वाह कुर्बान जाइए तेरे दंदां हैं जी। बदाम भनन की कोशिश नहीं करनी, कदी कदी ਇਹਦੇ ਨਾਲ खरोट नहीं तोड़ना है, ਜਿਹੜੇ रब ने दिते ने ਅਸੀਂ बोतलां पे खोलने हैं। वाह मालका कुर्बान जाइए तेरे देन ते। तो जनाब डॉक्टर पैसे लैके लाए तो ही उदियां तरीफां करना तक तो जिन्हें हज़रत जी कख भी नहीं लिया तो सोहने करके लाए। पुत्र है जिन्हें तुसी बच्चे ही हैं, जिन्हें लोग सानू नहीं गल्लां समझ आती, क्योंकि सानू ना शुक्री की बीमारी है। जाओ पुत्र उन्होंने जाके पूछो जिसे कल अखां नहीं है, अखां की होंदियां ने। मेरा एक बड़ा करीबी बच्चा सी, अल्लाह नू लंबी जिंदगी देवे, ਉਹਦੇ पुत्र दोवें गुरदे फेल हो गए, ठीक है जी। एक बार हज़रत असी हफ्ते 'ਚ 2 वार ਉਹਦਾ डायलिसिस ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हज़रत जी 7000 रुपया लगता ਸੀ एक वार डायलिसिस करवाਉਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ सफाई ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਦੀ, 7000 लगता ਸੀ एक वार। ਨਵਾਂ ਗੁਰਦਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੋਇਆ 50 ਲੱਖ रुपया लग गया। ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੋਹੇ ਪਾਏ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਕਾ ਗੁਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ, पेशाब कढ़न दे, कंध अंदर का साफ
کو فیس لئی ساڈے کول نہیں لئی. دیکھ لو کنا کسی بھول گئے دے اپنے مالک, کنا کسی بھول نہ. پتر بھولو نہ, یاد کرو اپنے اللہ دا ذکر کرو, اپنے محبوب علیہ السلام تے درود شریف پڑھو, کیونکہ اتنے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تھڑی دے. میرے حال جڑیاں رہی سانو اتنے روڈ تے یا محلے محلے چ عادتاں پی گئی ہیں, اسی سمجھنے شاید اگے بھی انج ہو جانا, کیونکہ سانو اتنے عادتاں نے نا, وہ تینوں نہیں پتا میں کون ہاں, میں ہوں اتنے یہ گلاں چل چل جاندی, لیکن پتر اتنے نہیں جے چلنی. میں تھی کہ میں اتنے بھی جا کے کہاں گا تینوں نہیں پتا میں کون ہاں, تو انہیں سٹ گھٹ کے سٹ کے کہنا کون ہے. ہاں میں اپنے کو گل نہیں کی, یہ علماء بیٹھے ہیں جو فرشتے آپ کی قبر میں عذاب دینے یا سزا دینے کے لیے آئیں گے, وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے, ادھر وہ کنوں بولے ہونے نے, تو جنہ مرضی کر لائی ہونا کہ انہیں تو نہیں پتا سٹ کتنے وجی انہوں تو لبنی کوئی. تھی سمجھ ہو رہے شاید گلاں اتنے بھی ہاں ایک گل ہے جی, وہ میں تمہیں دس چلا, جی پتر کر جو تو وہ چلنی جی اتنے ہے. پر تھی آخو جی میں انہوں نے کہاں گا جی میں میرا اس جماعت نہ تعلق ہے, میرا اس, انہیں کہنا سانو کی دسنے ہے. ہاں ایک گل دس, تیرا مدینے والے نال کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ باقی پتر اتنے کوئی تعلق نہیں جی چلنا. حضور دا تعلق چلنا جی, حضور دی نوکری دا تعلق, حضور دے نوکراں نال نوکری دا تعلق چلنا. اتنے یہ تعلق چلنا جی میں اتاری ہاں, میں جناب مصطفی ہاں, میں جناب جڑا نا قادری ہاں, میں جناب چشتی ہاں, میں سور وردی ہاں, ٹھیک ہے جی, میں سیفی ہاں, میں رضوی ہاں. اے جی کو کام چل جائے اتنے ادھر جی, باقی نہیں جی چلنا چلنا کوئی. میں تھی کہو نہ اتنے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات کچھ. اتنے عمل چلنا, اتنے کوئی کہانی نہیں ہوئی. اس لیے پتر اج وقت ہے, اج عمل کر لی. وہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا, لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائی. جوان بچے بیٹھے دیو, ایہی پتر ویلا جے عمل کرن دا. اور جوانی دے عمل دا کی کہنا, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی چ رب نہ لو لانا ہے تے انبیاء دا طریق ہے پتر. نہ اپنی جوانیاں ضائع کرو, اپنی جوانیاں نہ ضائع کرو. بڑیاں قیمتی جی حضرت, بڑیاں قیمتی نے, اس لیے ہے ہی نہیں جڑے پاسے اسی لگ گئے ہیں. قربان جائیے ہیں, آئے ہائے ہائے کتوں لے آئیے, لیکن وہ گلاں ہون لگ پئی. ہن تے پتر تیاں دے سکول جان دا ٹائم ہوندا ہی چونک مل کے کھلوتے ہیں. اللہ رحم پتر, جننے بچے ٹھیک ہے بندے نو ڈنڈ شنڈ وال ہون نا, بندہ نہیں کسی دی مندا سندا ہے, لیکن پتر میں تانوں سچ آکھن ڈیا جی, ڈنڈ سدا انج دے نہیں رہنی ہے. ہاں جی, اج پتر کسی دی تیلی نہ کھلو, کل تہاڈے لیے کسی نہ کسی نے ضرور کھلونا جی. میں تانوں سچ گل دساں, جوانی چ بندے نو گل سمجھ نہیں آتی کسی دی. یہ پتر ہو بھی وڈیریا جانا تے تی جوان ہو جانی ہے, پھر تانوں پتہ لگنا ہے کی لنگدی ہے. نہ کھلو کسی دی تیویں چوک چ, نہ کھلو پتر کسی. جو ساڈے وڈیاں دا رستہ ہے, یا اسی رستے تے چلیے. اللہ حدیث کی صحت پہ علماء نے کلام کیا, لیکن چلو فضائل دے حوالے نال ضعیف روایتاں بھی بزرگاں نے کیا. وہ معراج شریف کا ماہ آنے والا ہے, حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نا, اور آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا, تو جنتی اوراں دی سردار بھی حاضر خدمت. عرض کر دی محبوب رحمت للعالمین کو جتا فرماؤ. فرمایا جا تینوں اپنا بلال دے چھڑے, جا تینوں اپنا بلال دے چھڑے. وہ ادباً عرض کرتی ہے محبوب, عرضی ہے باقی جویں مالک دی مرضی. ایڈے ایڈے سونے تاڑے صحابی نے, حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر فاروق نے, حضرت عثمان غنی, مولا علی مشکل کشا نے, حضرت زبیر نے, حضرت سعد نے, اینے سونے صحابی نے. تے ساڈے لی اب شاید بلال ہی. آپ نے فرمایا اپنے حسن تے نہ مان نہ کر. میں تو یہ اپنے بلال نو پوچھے ہی نہیں, انہیں بھی کوئی اور چاہیے ہے کہ نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نا, اقبال نے لکھا تھا, اقبال کیا کہتے ہیں,
तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और कमाल हज़रत जी दूजा स्पैशल मेरे पुत्र जिन्हें जवान बच्चे बैठे थे कमाल कर छड़े हज़रत हैं जी। क्या फरमाते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, फरमाया और नहीं जन्नत ही मुबारक रहे ज़ादन, नहरा भी मुबारक, वावा भी मुबारक, बाग भी मुबारक हैं। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। लेकिन पुत्र आज तो राह ही भूल गई सी, आज तो मैं मोबाइल चाहता हूँ, आज तो पता नहीं मैं क्या और किस तरह जाना है। मैं पुत्र अपनी गल दसा अल्लाह दी कसम, बच्चे बैठे थे बड़ी शर्मिंदगी होती। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम जी ते बहुत शान बुलंद ते पुत्र जेडे साडे बुजुर्ग ने अल्लाह दी कसम कोई तुहाडे नाल झूठ नहीं बोलदा, मेरा रब गवाह है। मैं कल फिर लाहौर जाना, मैं 2 दिन लाहौर जाना, महीने 4-5 चक्कर लाहौर लगते रहे। मैं सच तुहानूं आखां हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम दी शान ते बहुत वड्डी। पुत्र मेरा दाता साहब जानदा भी हौसला नहीं पैंदा, लंघ के जाना बाहरों सलाम पेश कर, हौसला नहीं पैंदा। पग बड़ी वड्डी बनी हुई, जुब्बा पाया, शर्म आती केड़ा मुंह दाता साहब दे सामने ले, उन्हें कहना मनुसा शर्म नहीं आती, ते अड्डी पग पाई अंदर कुत्ते बने दे। बड़ा डर लगता है कल नबी अलैहिस्सलाम के सामने किस तरह जाना। मैं बेतहाशा लोग कहते नहीं रजा साकिब साहब ना मिल लो, अमीर आले सुन्नत की मेरे लिए औखा मिलना, मैंने लोड़ है किसी, लेकिन सिर्फ शर्म ना नहीं चाहिए। अखा वाले लोग ने केड़ा मुंह लैके जावे, की कहणगे, बाहरों इन्ना सजाया ही ते अंदर की है। कई बारी ते हालात होंदे ने, मैं अपने बजुर्गों के सामने बड़ा शर्मिंदा जा हो गया, लेकिन क्योंकि वह प्यो है ते प्यो ने ते पुत्तर नूं नाल लाना ही हुंदा ना, भावें जिवें दा मर्जी होए। मैं पता होंगे मैं जी करतूत खिलारी जनाब को पता है, लेकिन चुप करके टुर जी एने नहीं धोना तो फिर धोना किन्ने में, जेदे कल नहीं जाना तो किदे कल जाना, सारे बह के कदी कदी सोचिया करो रोज ना यार असी अल्लाह दे रसूल दी बारगाह जाना, केड़ा मुंह लैके जाना, की कहांगे उत्थे जाके, की आखांगे नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च क्यों नमाज नहीं पढ़ी है, क्यों दाढ़ी शरीफ नहीं सी रखी है, की आखांगे नहीं पता। अज मैं उस दिन असी हो के आए हैं जंग मंगे, मेरा बड़ा दिल सी सुल्तान बाबू जी, शर्म दे मारे नहीं गया, इन्ना ना दुनिया में करतूत टगे दी भी। उस दिन मैं उकाड़े गया, बड़ा दिल किया, मुंडिया ने भी किया, मैं टाल टूल गया, केड़ा मुंह लैके बाबा साहब की बारगाह च जावां। उस दिन मैं कसूर गया, बड़ा दिल किया हुजूर बुल्ले शाह जानते, लेकिन शर्म ना नहीं गया, केड़ा मुंह लैके जावां। ते तेरे जी दिल वड्डिया जांदा है यार, बाबियां सामने जान दी हिम्मत नहीं, नबी अलैहिस्सलाम दा सामना किस तरह करना है, मुंह ते दाढ़ी नहीं, नामा या माल च नमाज कोई नहीं, कुरान पाक कदी खोल के नहीं वेखे, तस्वीर असी छड़ बैठे दी, ये समझो रिहाई मौलवियां लई, मोबाइल 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 मोबाइल। और मैं अक्सर बच्चों को सुनाना, मैनू मेरी अपने सारा मैं सन 2000 च ना मैट्रिक किया कौमी हाई स्कूल सियालकोट मल्ला रामता लई, ते मेरी बड़ा प्यार सी अपने सारे सरां नाल, बस एक सर सानू जरा डाडे बड़े सन, उन्होंने को बड़ा डर लगना, ते उन्होंने दा सबक ना याद होना, दुआवां ही कर कर फावें हो जाना, या अल्लाह अज सर स्कूले ना आने, कदी दुआ करनी या अल्लाह बारिश पा दे, कदी दुआ करनी या अल्लाह सर दी साइकिल खराब कर। मैं एक डर लगता सी की एक सबक नहीं यार, मैं की कर लेना सी उन्होंने, वो बई सोटी ही 4 मारनियां सन, मूँह च तो नहीं पा लेना। अज मैं अक्सर सोचना, मैं कहना यार सुलेमान
एक सबक नहीं सी याद है, जान जाती ही सर का सामना करती कि बिस्ती होनी है। यार अज किन्ने सबक नहीं याद, कल हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का सामना किस तरह करना है, किस तरह सामना करना। इसलिए पुत्र जिन्हें बच्चे बैठे ने, जिन्हें मुंडे बैठे ने, तो टाइम ना जाया करो। हाँ, अमल वाले पासे आओ, नमाज पढ़ो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। असी समझिए और गाला ना कड्डो है पुत्र, गाला ना कढ़िया करो, झूठ ना बोलो। मोबाइल हर एक दिया पुत्र, जिन्ना बचिया जाता है देख लो बच्चों। हाँ जी, फेसबुक के वाम शदाई हो गई है, हुणी निकलन लगे वेखियो की तस्वीर होनी। मैनू कोई नहीं है, लेकिन मेरा वस चले ना, सिर्फ मैं तां चुप करना। तुसीं कहोगे वेखो जी मिसबाई साहब अपनी क्लिपां च कहंदे ने प्यार करो, अखलाक चंगा करो, तो आप ही तो बहुत डाडे ने। मैं सिर्फ तां चुप नहीं, मैं तुहानूं एक तस्वीर ना खिंचन दी, क्योंकि पुत्र कोई फायदा नहीं इस तस्वीर का। कौम पागल हो गई साडी। मैं तुहानूं सच दसां, तस्वीर खिंच के ना तुसीं मसलन हुण खिंचनी जानी, मैं हालात कहण भी डिया मुंडिਆਂ ने, फिर भी नहीं मुड़ना है। अच्छा खिंच ली तस्वीर, की होनी है जी, की करोगे मसलन बोते तू बोता फेसबुक पर चाड़ दी, चढ़ के की नवी मुसीबत जान में पै जानी। वो की थोड़ी थोड़ी देर बाद तुसीं खोल के वेखना भला किन्ने के लायक होए ने, होना ना इंदी। तो जे नहीं लायक होने फिर तुसीं गालां भी कड्ढनियां ने, वो यार होए सारे सौ गए ने, मैं तस्वीर चाड़ी ते कोई वेखण ही नहीं डिया। इत्थों तक कि सवेरे तुसीं उठ के तुसीं कख नहीं करना है, तुसीं सब तो पहले मोबाइल खोल के वेखना रात च भला किन्ने के लायक होए ने। मैं कहना लो जी तुहानूं पूरा पिंड, पूरा संभड़ियाल, पूरा सियालकोट लायक दे छड़े तो की हो जाना, कख भी नहीं होना। जो तुसीं है तुसीं वही रहना। चलिया खोल कुरान शरीफ, खोल कुरान शरीफ, वो एक बारी सिर्फ पढ़ लै, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने तेनू 10 सिपारे तलावत करन दा सवाब दांगे। वो फेसबुक जिन्हें कख नहीं देना सानू, असी शदाई हो गई कौम, शदाई। और पुत्र मेरी गल याद रखो, ऐसी असी लायक लायक खेडन डे दे, तू मैनू लायक दे मैं तेनू लायक। अबल तो अदर जी इन्ना टाइम ही नहीं मिलता है, गड्डी च कोई थोड़ा टाइम मिल जाए मैं खोलना वा तो अदर मैं नाल ही नूं बंद कर छड़ना वा कि यार की कौम हो किहड़े पासे गई है। पुत्र कख भी नहीं जी है, तुसीं मैनू लायक, मैं कख भी नहीं है। गल उदों ही बननी जे जदों को लायक मदीने पाक तो मिले है, गल फिर ही बनी। और मौलाना रूम ने बाकायदा इसको हिकायत किया। फरमाते हैं एक काकी सी दा विआह आ गया, वोटी बनी सी, तुहानूं पता है धीआं माशाअल्लाह जी सोहणियां होंदियां, जरा वोटी बन जान ते होर सोहणियां लगदियां ने। रूप चढ़िया दा सी जनाब, जेड़ा आया आके कि आहा अज तो बड़ा ही रूप चढ़िया। खाला मासी फुफी चाची ताई सारे ही कहण बड़ा रूप चढ़े, लेकिन वो साडे यार फेसबुक की बीमार नहीं सी। वो अगों रोन लग पई, सारे ने कहा चलीए, कानू रोन डई, असी कहण डे रूप चढ़े है, सोहनी लगन डई बड़ी। उन्हें कहा तुहानूं ते सोहनी लगन डई दी, लेकिन अज गल तुहानूं सोहने लगन ना नहीं मुकनी, दुआ करो जिद्दों कोई चली उन्होंने भी सोहनी लग जा। है पुत्र तुहाडे मेरे लायक ना कख नहीं होना, तुसीं मैनूं जिन्ने मर्जी दिओ, मैं तुहानूं जिन्ने मर्जी दियां। गल उदण ही बननी जिदन को लायक मदीने पाक तो मिले है। तो वेख लो फिर बाबे खादम हुसैन रिजवी नूं मिलिया कि नहीं मिलिया है, मिलिया लायक कि नहीं मिलिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मिलिया लायक कि नहीं मिलिया। बाबे बाबे ने काम किया और को नाल ही काम नहीं किया, बाबे ने उन्हां लई काम किया। इधर बाबा जी ने, बाबा कहण दिया बेदबी हो गई, बाबा जी ने उन्हां लई काम किया। हाँ आप ही बाबा जी कहंदे वो गिरफ्तारी हुई बाबा जी, तुहानूं पता जो इंदे हालात आते हैं फिर गिरफ्तारियां शुरू होंदियां। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं सी, थ्रेड सी पूरा। बाबा जी नूं सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना, नाल डरा के भी लियाना कि बाबा जी बाज ना आए तो यह भी कुछ होना जी। हैं जी सारे मामले होए इधर जी, खिचिया भी, धरूया भी, बेदबी भी हुई, सारा कुछ ही होया। तो होना तो चाहिए ना बंदा रोंदा शोंदा नहीं। बाबे होरी हसन पे, बड़ा पुलिस अफसर गिरफ्तारी ते ही आया ही, बड़ा हैरान होया। वही बाबा डराना है या बाबा को हसन डे, हैरान होके पूछदा बाबा जी हसन क्यों डे, क्यों एडे खुश होन डे।
आपने फरमाया हसन तां डिया वा खुश तां होण डिया ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟਣ ਡੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਪਿਆ ਹੋਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਈ ਅਮੀਰ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ हाँ जी इधर वो ये नौकर के नहीं क्योंकि उन्होंने उत्थे नौकरी की थी हैं जी जिसने नौकरी की थी दुनिया उन्होंने नौकर है वो तो है ही बड़े करीम बन जाइए वो ये हमारे बड़े जो है ना बुजुर्ग हुए हजरत शेख अबुल खैर अख्ते अलैहि रहम हाँ जी वो ये सही को नौकर हजरत फरमांदे ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना पाक बुलाया हाँ जी भाजी आप ही नहीं जाता कोई हो ही जाता जिन्हों बुलाते जो कितने रहमत होए ना तो जाते किसी ने कह के जाइयो कि मैं चला वा बल्कि यह कह के जाइयो मैनू उन्होंने बुलाया है उन्होंने बुलाया फरमांदे ने मैनू बुलाया उन्होंने मैं अपने आका मौला की बारगाह च हाज़िर होया उत्थे जाके दुरूद सलाम पेश किया कहते ने आ गए कहते एक दिन लंघ गया भुखा इम्तिहान भी आ जाते हैं ना बस दफे दूजा दिन आ गया भुखा तीजा दिन आ गया भुखा चौथा दिन आ गया भुखा पंजवां दिन आ गया भुखा साढ़े हार नहीं सन है कोई मैं गल बस की करिए लेकिन फिर की कहते ने दिल के फफोले जल उठे सीने कोई बंदा सी तेरे तो पढ़े पिया स्टेज ते ना उनका मंगता हूँ जो मंगता हो उन्हें नहीं देते मैं तो भाई डर ना मुँह छुपा लिया जो रोटी खान बैठे ना मैं यार गल सुन मैं तेन नसीहत ही कर सकना वा यार सिर्फ ना तारीफ करिया कर दावा ना करिया कर उन्होंने कहता जी क्यों मैं पुत्र फड़ कतांगी सिर्फ उन्होंने तारीफ करिया कर साढ़े च बड़ियां कोताहियां ने तारीफ सबसे औला वाला हमारा जिहड़ा मर्जी पिया पढ़े दावा नहीं उन्होंने मेरी होरे गल नहीं समझनी है मैं कहता जी क्यों ये की कलाम है कलाम च कोई कबाहत नहीं कबाहत साढ़े विच कहता जी वो की मैं अल्लाह दे बंदे 40,000 पहले अकाउंट च मंगवा के मैं ही तकरीर करना आया तो लोगों भी कहने उनका मंगता हूँ जो मंगता हो उन्हें नहीं देते जी गल्लां ने जिहड़ा जी उन्होंने मंगता फिर लोगों का मंगता तो नहीं होंदा है गल करो करन लगे डरो को थोड़ा जिहा किहड़ी तार नूं हत्थ पाउण लगे जिहड़ा उन्हां दा मंगता हज़रत वो नहीं किसी दा मंगता हुंदा हकीकत मैं आप बच्चिआं नूं गल दस तां पुत्तर उन्हां दा मंगता वो किसी दा मंगता नहीं हाँ जी वो मंगते सन उन्हां दे कहते ने मैं किसी शेख दे किसी अमीर दे दरवाजे ते नहीं गया कहते जिहड़ा दा मंगता होना दे दरबार आखदे लगे कहते ने मैं आके अर्ज़ कीती महबूब अलैहिस्सलाम आप दा मेहमान आ ते 5 दिन दा भुखा कहते ने अर्ज़ी पेश करके मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम दे मिंबर शरीफ ते पिछे जाके सो गया आप फरमांदे ने जो सो गया ना ते ख्वाब च की वेखना कि सुता दा हकीकत च भी सो गया ते ख्वाब च की वेखना सुता दा हाय हाय उन्होंने दा मंगता बन तेनू ख्वाबों आके जगाणगे भी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हाय फरमांदे ने ख्वाब च की वेखना वा कि सुता वा ताकि मैनू जगाया हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला आ फरमांदे ने मेरा उठिया तो आ फरमांदे ने ऐ अबुल खैर तू सोया है देख हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए कहते ने मैं हाज़िर खिदमत होया ते जाके की वेखना सज्जे पासे यारे गार यारे मेज़ार जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने वेख्या ते बाएं तरफ खब्बे पासे हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला बैठे कहते ने मैं ख्वाब च ना हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम दी मुबारक पेशानी नूं चुम्मिया तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने अगू फरमाया अबुल खैर तू 5 दिन दा भुखा है ते साडा परोना है ऐला फिर रोटी खा कहते ने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब च मैनूं एक रोटी दी साथ फरमाया कि खा कहते इसलिए मैंने वहाँ बैठ के खानी भी शुरू कर दी फरमाते मुझे याद है मैं थोड़ी थोड़ी ना तोड़ के खा रहा था और साथ हुजूर के रूए अनवर की ज़ियारत कर रहा कहते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई जिवें हुंदा ना रजी वो विआहां च नान विछकारों कटिया हुंदा कहते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई आधी अभी मेरे हाथ में थी और ये नहीं कि वो आधी खाना नहीं चाहता था फरमाते मैं खाना चाहता वो रोटी तो देखो कौन सी थी जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते करम से अता की थी फरमाते मैं खाना भी चाहता था लेकिन क्या हुआ ख्वाब में आधी खाई गई आधी अभी हाथ में थी खा नहीं सका
कहते अख खुल गई, सुपने दे विच मिलिया माही ते गल विच पा ली अंबा, डरदी मारी अख ना खोलां किते फिर विछड़ ना जावां। लेकिन फरमाते ने अख खुल गई है, फरमाते अख खुल गई, अद्धी खानी सी मैं, अख खुल गई। लेकिन फरमाते कुर्बान जाऊं उनके करम पे, अख ते खुल गई लेकिन अद्धी फिर भी हथ विच ही सी। असी गलत राह पै गए, लभो अपना गुआचिया सब, सिर्फ पुत्रम में कमी, हाँ तो करम ही करम। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं एक रात ना मैंने ख्वाब देखी, एक रात मैंने ख्वाब देखी। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फ़जर हो रही है। फरमाते मैं फ़जर की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी शरीफ चला गया। कहते जब मस्जिद में पहुंचा ना तो क्या देखता हूँ कि पहले ही मुसल्ले पे हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा ख्वाब में। लेकिन हकीकत में मामला ये था कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका था, आपने पर्दा फरमा लिया था। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी विसाल हो चुका था और दौर था अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। कहते हैं मैं बैठ गया और हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करनी शुरू कर दी। कहते हैं कामत कही गई, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में बनफ़्स नफ़ीस अमामत फरमाई और 2 सूरतें पढ़ी अलग-अलग। नमाज ख़त्म हो गई, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फिर अपने ग़ुलामों की जानिब चेहरे वद्दुहा किए, जलवागर थे। सारे सहाबा हुज़ूर के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहे थे। कहते हैं एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ गए। कहते हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने सबको ख्वाब में ना एक एक खजूर दी। कहते मैंने खा ली। कहते जैसे खजूर ख़त्म हुई ना मेरी आँख खुल गई। फरमाते आँख तो खुल गई लेकिन मुँह फिर भी मीठा था। अच्छा कहते जब आँख खुल गई ना तो क्या देखता हूँ कि मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान फ़जर हो रही है। कहते मैं फ़जर की अदायगी के लिए मस्जिद चला गया। कहते जब मस्जिद गया ना तो वहाँ जाके क्या देखता हूँ कि मुसल्ले पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं और बैठे उसी तरह हैं जिस तरह ख्वाब में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे। फरमाते मैंने कहा ये क्या, तो फिर मैंने कहा भाई ये हो सकता है, इत्तेफाक हो जाता है। कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़जर की इमामत करवाई। कहते आपने भी वही 2 सूरतें पढ़ी जो ख्वाब में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। कहते मैं बड़ा हैरान। फिर मैंने कहा नहीं इत्तेफाकन हो जाता है। कहते नमाज ख़त्म करके हज़रत उमर फ़ारूक भी उसी तरह बैठे जैसे ख्वाब में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे। कहते मैंने कहा ये, कहते उतनी देर में एक सहाबी खजूरों की टोकरी लेके आ। कहते मैंने कहा ये भी इत्तेफाक हो सकता है। कहते हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने सबको एक एक खजूर दी। कहते मैंने खा ली। कहते जब खजूर खा ली ना तो दिल में ख्याल आया कि ख्वाब में तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम थे, आका करीम थे, अदब की वजह से दूसरी खजूर नहीं मांगी गई। तो यहाँ तो मेरे भाई हज़रत उमर फ़ारूक हैं, एक और खजूर ले लेता हूँ। कहते मैंने कहा हज़रत उमर फ़ारूक से भाई उमर एक और खजूर दे। तो कहते आगे से हज़रत उमर फ़ारूक मुस्कुरा के फरमाने लगे ऐ अली जे ख्वाब च नबी अलैहिस्सलाम ने दी तो मैं भी दे देना। अगर ख्वाब में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने दी थी तो मैं भी दे देता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये बात इरशाद फरमाई ना तो हज़रत मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा उमर ये क्या रंग है। तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं अली इल्म शहर का दरवाज़ा तो आप हैं और पूछा मुझसे रहे हैं। हमारी ये रातें खो गई हैं, लबो अपनी रात ध्यान करो साड़ियाँ रातां सिर्फ मोबाइल की नज़र ना हो जाए। इथों जाना है मियाँ जी, इथों जाना है। कोई बन गया रौनक पखियां दी को छोड़ के शीश महल चले जाना है। हज़रत जी को बन गया रौनक पखियां दी को छोड़ के शीश महल चले को पलिया नास्ते नखरियां विच को रेत गरम ते थल चलिया कोई भुल गया मकसद आवन दा कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। अज नचदे ने ससीए मोर बागी नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए न खाम ख्याल दे खैमियां दी टुट जानी एक दिन तना बड़ी है। बड़े बड़े असी टहंदे वेखे
उजर बहाना चलदा ना, जो आखे सो करिए। डीगर नूं जे ढहना होवे कानू कोल कोल मरीए। या देखो बंदा उठ के कवे ना जी मैं नहीं जाना, फिर उसदे नाल भी गल कर लैंदे कि भाई तू क्यों नहीं जाना। ते जे वे मनदे हो सारे कि जाना है, हथ खिलार के जरा एक बारी पुत्र जे मनदे हो जाना है तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते, फिर क्यों पुत्र नमाज नहीं पढ़ते, फिर क्यों नहीं नमाज पढ़ते। जो मनदे हो के जाना ही है फिर मैनूं दसो फिर क्यों नमाज नहीं पढ़ते, फिर क्यों रब नूं भुल गए। कहे फकीर हुसैन ने माना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना, ओढ़क काम अल्लाह दे नाल है, उत्थे ही जाना पुत्र, उत्थे ही जाना, नसिया नहीं जाना है, नसिया नहीं जाना है। इसलिए सारे तैयारी करो। और पुत्र कदी कदी ना मायूस नहीं होना है, दलेरी जे इधर जी। कदी कदी जाया करो कब्रस्तान, और उत्थे जाके कबरां नूं वेख्या करो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਲੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਜ਼ਮੀਨੇ ਚਮਨ ਗੁਲ ਖਿਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿਆ, ਬਦਲਤਾ ਹੈ ਰੰਗ ਆਸਮਾਂ कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾ ਗਈ। ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਫੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਫੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਹਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਈ, ਖੇਡ ਖੂਡ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ। ਮਾਟੀ ਜੋੜਾ ਮਾਟੀ ਗੋੜਾ ਮਾਟੀ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਏ, ਮਾਟੀ ਦਾ ਖੜਕਾਰ, माटी कदम करेंदी यार। हुजूर बुल्ले शाह फिर एंड पे क्या फरमाते, आप फरमाते चार सैयां रल खेडन लगियां, पंजवीं विच सरदार, खेड खेड मुड़ माटी होइयां, पौंदियां पैर बसियार, माटी कदम करेंदी यार। जदू चाहेगा हजरत इस मिट्टी नूं फिर मिट्टी च मिला देगा। ये हमारी तारीख का बहुत बड़ा नाम है खलीफा मादी। चंगे यार बनाइयो पुत्र, चंगा यार चंगा ही मशवरा देगा। एक दिन खलीफा मादी बैठा सी, दिल च ख्याल आया टुर ते जाना है, दसो किहड़ा काम इंज दा करिए मैं टुर जावां, दुनिया काम नाल याद रखे। यार भी इंज दे सी। उन्हें क्या मादी एक इमारत बना बड़ी वड्डी, तू टुर भी जाएगा, जिदों तक इमारत रहेगी तेरा नां रहेगा। हैं जी लो जी बुला ले उन्हें नक्शा बनाने वाले, नक्शा पास हो गया, काम शुरू होया, इमारत बन गई बड़ी वड्डी। लो जी उन्हें ऐलान करवाया एक दिन लिए मैं अपनी इमारत खोलना सारे थे, आओ सारे वेखो। इरादा यही सज्जन आएंगे खुश होणगे, दुश्मन आएंगे वेख के सड़नगे, नाले की जरा बरीकी नाल वेखणगे, जे कोई कमी होएगी तो पहला दसणगे तो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन जनाब चावां ना बनी सी, लोगों ने बड़ियां बड़ियां बरीक ऐनकां ला के वेखियां, कमी निकली कोई नहीं। लिखिया है कि जी सूरज पे डुबे, मादी बड़े गुरूर तकबर नाल अपने माल दे सामने खलोता सी। एक बाबे होरी आए, टुटी जुत्ती सादे कपड़े, आके सलाम अलैकुम किया। मादी ने बाबे अल वेख्या, उन्हें सलाम का जवाब ही नहीं दिता। बाबे री फरमान लगे मादी इमारत तो बड़ी सोहनी बनाई है। उन्हें कहा तू ना कवें तो फिर भी सोहनी है। उन्हें कहा है बड़ी सोहनी लेकिन दो नुक्स ने विच। पहले तो गुस्सा लगा, उन्हें कहा किसी को नुक्स नहीं लगे, निकलिया बाबे ने नुक्स किनू कट छड़े। फिर क्या नहीं उम्र का वड्डा है, तजुर्बा है, हो सकता है कि मैनू नज़र आ गया हो जिहड़ा किसी नू नज़र नहीं आया। काम पिया नाल ही सलाम दा जो, हो बाबा जी मैं जरा सलाम दा जवाब नहीं दे सके। ठीक की नुक्स ने दो दसो तो सही ना। आपने फरमाया पहला नुक्स है वे कि तू बड़ा आकड़ के अगे खलोता था, कुल्लू मन न लई हाफान, इन्हें तो रहना ही कोई नहीं है। कुल्लू मन न लई हाफ, तू कि ना तो लगा आकड़, इन्हें तो रहना ही कोई नहीं है। और निकल गई आकड़ अंदरू सारी, अखा नम हो गई। बाबा जी दूसरा नुक्स, आपने फरमाया दूसरा नुक्स है वे कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिन्हें बनाया उन्हें भी नहीं रहना है। कदा पुत्र मान कर दे, एदा कदा मान, एदा कोई मान ना करो ना इन्हां कम्मां च। और जेड़े इधर जी माना च सी पै गए ना, कोई मान नहीं है। मान ओदी ज़ात उत्ते इधर मान ओदी ज़ात। और जिन्ने पुत्र जवान मुंडे बैठे वक़्त लंघदा पिया पुत्र अपने रब नूं राज़ी कर। हज़रत बहलोल दाना आप मुरीसन हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह तआला मरज़ूक बुजुर्ग, बहुत बड़ा तारीख दाना रहंदे इत्थे सन, लेकिन
ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਲ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਲ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਾਥੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਇੰਝ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਲੋਲੇ ਦਾਨਾ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਾਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਬਿਠਾਓ ਥੱਲੇ। ਬਿਠਾਇਆ। ਹਾਰੂਨ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹਲੋਲ ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ? ਤੂੰ ਤੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਹੈ, ਵਰਾਨਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂ। حضرت بہلول نے فرمایا ہارون میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے۔ اچھا پتر ایک گل ذرا صحیح دسیو، جھوٹ نہ بولیو، ہو سکتا ہے سچ بولے معافی مل جائے۔ کدی خیال بھی دل چ آیا کہ اللہ ناراض ہے کہ خوش ہے؟ آیا کدی خیال؟ ہے پتر ساڈے حالات، سانو کدی خیال بھی نہیں آیا، سانو کدی خیال بھی نہیں آیا کہ اللہ ناراض ہے کہ خوش ہے۔ پر میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے۔ پروٹوکول سی، ہاتھی سن، گھوڑے سن، جاہو جلال سی، قیمتی لباس سی، سیٹ سی۔ اتنے تو بھائی جی ایک نشہ نہیں مان، اتنے تو کنے نشے کٹھے ہوئے سن۔ انہوں فقیر دی گل ہی نہیں سمجھ آئی، پوچھتا پھر صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا جو تے مندا ہے نہیں مندے، گل آئی گئی ہوئی۔ پھر ایک دن ہارون نکلیا تے دھیان پیا تے ویکھیا حضرت قبرستان بیٹھے، بڑا حیران ہویا۔ اس دن بابا بازار چ اج قبرستان جی کی سواری رکوائی آیا، آ کے پوچھیا بہلول وہ اس دن بازار اج قبرستان؟ آپ نے فرمایا ہارون جگہ ہی بدلی ہے، کام تے وہی کرن ڈیا، اتھے بیٹھا بھی مخلوق تے مالک دی صلح کران ڈیا ہے، اتھے بھی مخلوق تے مالک دی صلح کران ڈیا۔ یاد آ گیا، پوچھتا ہے بہلول اس دن تے نہیں سی ہوئی، اج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت بہلول رو پے۔ آپ نے فرمایا ہارون اج ہے تے منڈے نے، ہن وہ نہیں منڈا ہے، اج مندا جی حضرت جی، منا لو پتر، اج مندا ہے، وقت لنگ گیا نا تے کچھ پلے نہیں جے رہنا ہے، اج مندا انہوں مناؤ۔ اور آخری گل میں نال ہی اجازت چاہوں گا کیونکہ تھک گئے ہو تو ہی سارے، کنا قدر جی کریم ہے۔ آخری گل حضرت عمر فاروق دا دور سی، حضرت ایک چور پھڑیا گیا، تر پتہ نہیں اسلام چ چور دی کی سزا ہے؟ وہ ہاتھ وڈ دے، وہ تھا ہاتھ وڈن لگے تے رو پیا، کہتا میرا ہاتھ نہ وڈو ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہتا بس ہاتھ نہ میرا وڈو، منو ایک باری حضرت عمر کر لے جاؤ۔ جڑے قاضی صاحب سن انہوں نے پوچھا تو چوری کیتی ہے؟ کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو آپ ہی منن ڈے تے پھر تینوں حضرت عمر کا کیوں لے جائے؟ تھوڑا نے بھی تینوں معاف نہیں کرنا۔ وہ بیچارہ کو رویا ہی ہے سٹائل نال، کو ترلا مینتے آئے نے کیتے کہ انہوں دا دل نرم بن کے لے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق کا لایا، آ کے عرض کردا حضور مینوں معاف کر دیو۔ آپ نے بھی وہی سوال کیا تو چوری کیتی ہے؟ انہوں نے کہا کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر معاف کیوں کر دیا؟ اس کردا حضور اس لیے معاف کر دو، میں جی پہلی باری چوری کیتی ہے تو پھڑ کر دو، میری اس لیے معافی بنتی ہے کہ پہلی باری کیتی ہے، اگوں نہیں کراں گا، اج پہلی باری بنتی ہے، مینوں معاف کر دو۔ ہائے ہائے کنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کریمی تے یقین سی، دی ستار الوجوبی تے کنا یقین سی۔ آپ نے فرمایا ایک چوری کرنا ہے، ایک جھوٹ بولنا ہے، تو کہنا میں پہلی باری چوری کی تھی تو پھڑ کرتا ہے، وہ چلیا وہ جھوٹیا، اور پہلی بار تو انہیں کدی آج تک کسی نے پھڑیا ہی نہیں ہے، پہلی باری تو انہیں پھڑے۔ پتر تھی تو بڑے چنگے بیٹھے دے ہو، میں تینوں اپنی دسنا، جو پہلی بار پھڑن والا ہوندا تے سلیمان مصباحی تینوں کدی بھی نہ لبدا ہے، بلکہ کی ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا،
एक गुनाह असी रात नूं मोबाइल चलाते समय शायद सानूं कोई नहीं देखदा पिया। अलम या अलम भी अल्लाह यारा है साडे ईमान दे ज़ोफ दा हाल है कि मुसलमानों नूं भी स्टोरां विच ऐ लिख के डराया जाता है, खबरदार कैमरे की आंख देख रही है। और कैमरा तो भावें उसका कनैक्शन ही कोई ना हो, लेकिन अल्लाह देख रहा है। कैमरे का तो भावें कनैक्शन ही कोई उन्होंने जिस डरान ली ला छड़िया, लेकिन अल्लाह देखता, अल्लाह देखता। कोई है ना समझे कि मैनू कोई नहीं वेखता पिया, लेकिन की है एक गुनाह जो मां प्यो वेखे देवे देश निकाला। लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन, लेकिन उलमा बैठे ने पुत्र पर्दे सदा नहीं जलने। यौम तुबल सरायर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। अन करीब दे नाना जी व तुकल्लिमुना अयदीहिम, एन हत्थां ने बोल पैना जी। हाँ या अल्लाह, ए मेरे नाल ही बटन नपदा हुंदा सी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आओ पुत्र, आज अपने अपने खाते क्लियर करवा, आओ आज माफी मांग ली। या अल्लाह पर्दे ना खोली है मालका, मालका पर्दे ना खोली, मालका माफी दे। नमाज पढ़ो पुत्र, बड़ा डाडा दिन जे कल वाला दिन। हकीकत है पुत्र, असीं ते अपने स्टेजां च मुका बैठे दियां गल्लां सारियां। ਇਹ तो अपने स्टेजां सिर्फ जन्नत दे टिकट वंडण आने असीं मुका बैठे हैं गल्लां अपनी स्टेजां तो। पता नहीं सानू की हो गया, किहड़ा कोई साडे कोल मामला। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह है कबर नूं वेख के इन्ना कराउंदे सन कि आपदे आंसू नाल आपदी दाड़ी भेजन थी। तू की हो चूड़ा चमाड़, किथे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला है। इसने अर्ज़ कीती हुज़ूर क्यों रोंदे हो कबर नूं वेख के इन्ना? फरमाया वो जगह है जिहड़ा इत्थे कामयाब हो गया अगे भी कामयाब हो है। असी साड़ियां स्टेजां ते ना ही कोई नहीं है। इश्क इश्क इश्क, ये बई केड़ा इश्क है तेरे नमाज ही कोई नहीं। ये केड़ा इश्क है तेरे दाड़ी कोई नहीं। ये केड़ा इश्क है जिहदे विच कोई गलबात ही नहीं है। बस वो इश्क ते है ही गुलामी दा नाम। हाँ जी, इश्क ते है ही गुलामी दा नाम। इश्क ही ते गुलामी करवांदा है। इसलिए पुत्र जिन्ने बच्चे बैठे थे ठीक है पुत्र, नमाज पढ़ी, कोई नमाज न छड़ी। नमाज नबी अलैहिस्सलाम दी मुबारक अखां दी ठंडक है। हाँ जी, ठंडक है नबी अलैहिस्सलाम। नमाज दीन का सुतून है। देखो ना असी हुजूर गौसे पाक दे मनण वाले बैठे हैं ना सारे। असी हुजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह मनण वाले बैठे हैं। लेकिन एक बाबे की फरमांदे ने, आ फरमांदे ना बेनमाज है सूर ना भी पढ़। एक बाबे की फरमांदे ने, आ फरमांदे ना बेनमाज नूं मुसलमानां दे कब्रिस्तान च दबो ही ना है। पुत्र की बनेगा कल? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान और काफिर में फ़र्क नमाज। इसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, तहकीक उसने कुफ्र जैसा काम किया है। नमाज पढ़ो सारे, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो पुत्र। अल्लाह आप सारे नूं सलामत रखे, बाकरामत रखे। ठंड भी वावई है ते वावई है ना, हाँ कहना वावई ते नहीं है भी पुत्र, इसकी कोई गल नहीं। ते अल्लाह सलामत रखे। जिन्ना पुत्र दे सकना दे छड़े तुम, तुसीं इहदे ते भी अमल करो तो बहुत है। पढ़ोगे ना सारे नमाज इंशाअल्लाह? ठीक है जी, हथ खलार के वादा नहीं मैं लांगा। हाँ इंशाअल्लाह। या अल्लाह ए खलोते हथ वेख लै, असीं इन्ने जोगी, अल्लाह सानू तौफीक दे दे। अल्लाह ए खलोते ने हथ इन्हां बच्चियां ने खलारे, इन्हां बच्चियां नू तौफीक दे। और या अल्लाह वो वाला नमाजी ना होना है एक्सरसाइज वाले, इन्हां दा अंदर भी नमाजी कर दे, इन्हां दा अंदर भी नमाजी कर दे, इन्हां दा अंदर भी नमाजी कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह